افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے خوفناک دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے، 11 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے شادی والے گھر سمیت 3 مکان زمین بوس ہو گئے، اطراف کے کئی گھر بھی متاثر ہوئے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم، متاثرین کو امداد دینے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی دارالحکومت میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے خوفناک دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے شادی والے گھر سمیت 3 مکان زمیں بوس، اطراف کے کئی گھر بھی متاثر ہوئے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم، متاثرین کو امداد دینے کی ہدایت کر دی۔ شہری اقتدار کے سیکٹر G72 میں گیس لیکیج سے ہولناک دھماکہ، شادی والا گھر ایک لمحے کے اندر ماتم کدے میں بدل گیا۔ دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ شیرون اور مہک کی گزشتہ روز ہی شادی ہوئی تھی۔ دلہے کی ماں بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہے۔ 11 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ والد دوسرے گھر میں سونے کی وجہ سے محفوظ رہا۔ اس حادثے کی وجہ سے کافی اموات ہوئی ہیں، جس میں میرا بیٹا، بہو، میسز اور بڑی بھابھی ایکسپائر ہوئے ہیں، زخمی ہیں۔ بیٹی میری زخمی ہے، سی ڈی ہاسپٹل میں سالی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کا جائے وقوع کا دورہ، المناک واقعے کو گیس لیکیج کا شاخسانہ قرار دیا، متاثرہ افراد کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا عندیہ، متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے اور بڑا ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے بھی اور محسن نقوی صاحب کی طرف سے، انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے بھی یہ کنوے کیا گیا ہے کہ جو بھی ہم نے اس پوری کمیونٹی کے لیے جو بھی ہم کمپنسیشن دے سکتے ہیں وہ کم ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ جو باقی گھر رہ کے ان کو بھی چیک کر لیں، کہیں پہ اگر دراڑیں ہیں تو ہم بالکل الاؤ نہیں کریں گے وہاں پہ کوئی رہے۔ اگر ہمیں فل فور ان کو کہیں پہ شفٹ بھی کرنا پڑے تو اس کا بھی پورا انتظام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سلنڈر دھماکے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر صحت کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی۔ سیکرٹری داخلہ کو مکمل تحقیقات کا حکم بھی دیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں سلنڈر دھماکے نے 8 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ مرنے والوں میں دلہا شیرون، دلہن مہک، دلہے کی والدہ بشرا حنیف اور تائید شامل ہیں۔ ہمسایوں کے 2 بھائی بھی جان سے گئے۔ مزید بات کریں گے علینا شاہد جو کہ وہیں پر وقوع پر موجود ہیں۔ علینا، ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ، قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے، بتائیے گا کیا کہنا ہے لواحقین کا؟ جی بالکل، آج صبح سویرے یہ افسوسناک واقعہ اسلام آباد G7 میں اس کالونی میں پیش آیا اور یہ ایک شادی کا گھر تھا، کیونکہ گزشتہ رات ہی یہ لوگ بارات لے کر واپس آئے۔ رات 2 بجے ہی اپنے گھر پہنچے۔ صبح 7:19 پر یہ واقع ہوا۔ اس بلاسٹ کے بعد جو عینی شاہدین ہیں، جو ان کے ہمسائے ہیں، ان کا یہی بتانا ہے کہ جب سے بھی آپ سے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ خبر ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں دراڑ، نیو یارک ٹائمز نے بھارتی شرنگیزی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت گرنے کے بعد تعلقات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، یہ لکھا گیا ہے نیو یارک ٹائمز میں۔ مزید لکھا گیا ہے کہ بھارت حسینہ واجد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کے دباؤ پر بنگلہ دیشی کھلاڑی کو IPL سے نکال دیا گیا۔ جواب میں بنگلہ دیش نے ٹیم ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ بھیجنے کا اعلان بھی کیا۔ نیو یارک ٹائمز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش اختلافات دونوں ملکوں میں انتخابی نعرے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ خود کو طاقت کے طور پر منوانے کی بھارتی کوششوں کو دھچکا لگا۔ 1971 کے بعد پہلی بار بھارت ڈھاکہ میں اپنی حیثیت کھو چکا ہے۔ بھارت کو محمد یونس کی بری حکومت کے خاتمے کا انتظار ہے۔ کاموں کی میں استحکام پاکستان پارٹی کا ورکرز کنونشن اور کارکنوں کی آمد جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، قاسم ارشد سے جان لیتے ہیں جو کاموں کی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاسم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ قوموں کی میں استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تاہم ابھی ورکر کنونشن کے آغاز میں وقت ہے، لیکن کارکن ابھی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ورکر کنونشن نہیں ہے، کیونکہ جتنی بڑی تعداد ہے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جلسہ ہے۔ کیمرامین جواد یحییٰ اگر دکھا سکے
तो यहाँ जहाँ जहाँ नजर जा रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम थामे वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं, कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं, दूर दराज इलाकों से देहात से लोग यहाँ पर आए हैं इस IPP के वर्कर कन्वेंशन को ज्वाइन करने के लिए। इसमें ना सिर्फ खवातीन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मर्द हजरात मौजूद हैं, बुजुर्ग अफराद, एकल उम्र अफराद मौजूद हैं यहाँ पे। और इस वक्त जो है वो पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं और जो कारकुन है सर्द मौसम में उनका लहू गरमाया जा रहा है। हर किसी ने जो है वो IPP का पार्टी परचम थामा हुआ है और इस वक्त साउंड सिस्टम पर IPP के तराने बजाए जा रहे हैं, कभी मिली नगमे बजाए जा रहे हैं और इस पर जो है कारकुनों का लहू गरमाया जा रहा है। इस वक्त अभी चूँकि वर्कर कन्वेंशन के आगाज़ में अभी वक्त है, लेकिन कारकुन पहले से यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर बैठ गए हैं। जगह जो है वो कम पड़ती जा रही है, कारकुन बढ़ते जा रहे हैं और कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ जहाँ तक नज़र जाए यहाँ पर कारकुन नज़र आ रहे हैं। मेरे दाएं जानिब यही मनाजर जो मेरे बाएं जानिब भी हैं, इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो IPP के परचम थामे यहाँ पर मौजूद है और मुंतज़िर है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर जैसे यहाँ पर आएँ और वो उनसे खिताब करें। और इसके साथ साथ जो कारकुन यहाँ मौजूद हैं, सुबह से ही कारकुन यहाँ पहुँचना शुरू हो गए थे, रैलियों की सूरत में मुख्तलिफ देहातों से यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। कामों के करीब मुंसलिक जो 200 के करीब देहात रखते हैं, जो उनका ये कहना था, जो मुंतज़मीन है उनका ये कहना था कि दूर दूर देहात में भी ये पैगाम पहुँचा है कि आज वर्कर कन्वेंशन पर पहुँचना है। और जो कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं ये मुंतज़िर है कि कैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान यहाँ पर आएंगे और वो उनका खिताब सुनेंगे। इसके लिए वो पहले से यहाँ पर मौजूद है और वो मुंतज़िर हैं कि कब जो पार्टी कायदीन यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे और वो मरहलावार उनके जो है वो खिताबात सुनेंगे और जो आइंदा का लाया अमल होगा उसके लिए वो तैयार होंगे। यहाँ पर मुंतज़मीन भी मौजूद है, यहाँ पर कारकुन भी मौजूद है, तो पुलिस की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। कारकुन जो हैं वो रैलियों की सूरत में, पैदल, गाड़ियों पर, ट्रांसपोर्ट की सूरत में मुख्तलिफ मकामात से, दूर दराज इलाकों से और करीब से होते हुए यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन में पहुँच रहे हैं और वो मुंतज़िर है कि जैसे ही जो है वो बाकायदा तौर पर कन्वेंशन का आगाज़ होगा तो वो अपने कायदीन जो है उनकी बात पर और उनके नारों पर जो है वो उनका भरपूर साथ देंगे। और वो मुंतज़िर है कि आज का ये जो वर्कर कन्वेंशन है इसके बाद ये जो इलाका है यहाँ के जो मज़ीद मसाइल है जिनको हल होने की ज़रूरत है उसको हल किया जाएगा। जबकि यहाँ पर एक जानिब देखा जाए तो बुजुर्ग अफराद, ज़ईफ़ुल उम्र अफराद मौजूद हैं, ये भी मुंतज़िर है कि जो IPP के जो कायदीन है उनका खिताब सुने। यहाँ बाएं जानिब यहाँ पर जो है वो नौजवान मौजूद है, ख़वातीन मौजूद हैं जो बच्चों के हमरा यहाँ पर सर्द मौसम में मौजूद है और उनकी कोशिश यही है कि वो यहाँ पर IPP का जो वर्कर कन्वेंशन है उसको जो है वो उसमें शामिल हों भरपूर तरीके से। और यहाँ कामों के करीब जो मुंतज़मीन है वो बताते हैं कि 200 के करीब जो है वो देहात है जहाँ मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से और देहात से लोग यहाँ पर जो है वो आए हैं और वो बराजमान हैं और इस चीज़ के लिए मुंतज़िर है। बार बार कभी मिली नगमे बजाए जा रहे हैं, कौमी तराना बजाया जा रहा है और पाकिस्तान जो है कौमी परचम की अक्कासी करते मिली नगमे बजाए जा रहे हैं। ठीक है कासिम, आप वहीं पर मौजूद रहिएगा। कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंच भी चुकी है और लोगों का जो सिलसिला है आने का, वहां पहुंचने का, वो भी जारी है। आपसे मजीद भी वक्तन फवक्तन इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात हुई है और इसहाक डार की इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म का सोमालिया की खुद मुख्तारी सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। और नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुतल्लिक़ किसी भी तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए कोशिशों में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। आपको अपडेट करें कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात हुई है। इसहाक डार की इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने की शदीद मज़म्मत। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कराची में आज जलसा मुकर्ररा वक्त और मकाम पर कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। सिंध हुकूमत सुहेल आफरीदी के दौरे के आखिरी दिन बदमज़गी पैदा ना करे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दौरा सिंध के हवाले से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया। कहा, आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा सिंध का दिन है, पीर को सुहेल आफरीदी की वापसी है। सिंध हुकूमत दौरे के आखिरी दिन बदमज़गी पैदा ना करे, बराए मेहरबानी चीज़ें अच्छे माहौल में चलने दें। जलसा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हकूक़ के लिए होगा।
SIFC की हिकमत अमली से हुकूमत और निजी शोबे की शराकदारी मजीद मजबूत, मौसम मुआशी इस्लाहात से सनती तरक्की को नई रफ्तार हासिल हो रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने अमेरिकन बिजनेस काउंसिल वफ़द से मुलाकात में कहा कि हुकूमत निजी शोबे के साथ हम आहंगी बढ़ाकर मुआशी बहाली और इस्लाहात के अमल को तेज़ कर रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के सदर अकरम वली मोहम्मद का कहना था कि कारोबारी हल्कों में पाकिस्तान की इक़्तिसादी सम पर एतमाद नुमाया हद तक बढ़ गया है। पाक फौज की तरफ से गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा का कराची का मुतालियाती दौरा कामयाबी से मुकम्मल। दौरे का मकसद तलबा को तालीमी और अमनी मुशाहदात फराहम करना था। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा ने कराची के दौरे के दौरान मज़ार क़ायद और PF म्यूज़ियम का भी दौरा किया। तलबा मैरीटाइम म्यूज़ियम भी गए, जहाँ उन्हें बहरी अमूर की अहमियत और पाक बहरिया से मुतल्लिक जामे ब्रीफिंग भी दी गई। तलबा को जामे कराची का दौरा कराया गया, जिससे उन्हें आला तालीमी माहौल और तहक़ीक़ी रुझानात से आगाही हुई। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है।